Let's continue. With premium problems. Last lecture we started with premium. Yeah. Please take the assignment sheet yesterday which I sent you. Issue of shares का assignment sheet. Or the assignment sheet of issue of shares. सर आप इस पे स्क्रीन शेयर कर सकते हो असाइनमेंट शीट। असाइनमेंट शीट स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसका सॉल्वेंट नहीं दिखेगा, दोनों सर ड्यूअल आधा आधा स्क्रीन छोटा हो दिखता है जाएगा। ना? हाँ, डुअल स्क्रीन पे छोटा हो जाएगा, दिखेगा become small. That's all. सर ये सब आप सॉल्व करवाओगे? सब नहीं, थोड़े बहुत होमवर्क होंगे, इम्पोर्टेंट वाले विल सॉल्व इट। Assignment sheet. These are including CA foundation level problems. तो आप ये असाइनमेंट शीट कर लोगे और अपना टेक्स्ट बुक और शीट कर लोगे तो ऑल न्यूटन एंड कॉर्नर वुड बी कवर्ड इन शेयर्स, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मोर देन इनफ। असाइनमेंट शीट लिया सबने? फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, टेक द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट शीट। A company invited applications for 10,000 equity shares. Company invited applications for 10,000 equity shares of 50 rupees at 60 per share each, payable on application 25 including premium, on allotment 20, and on first on final call 15 rupees. Applications were received for 10,000 shares, and all the applications were allotted in the number of shares they had applied, and the installment money was duly received by the company. Show journal entries in the books of the company. Abhi, look at the problem and tell me, is the issue at par or at premium? Hello? Yeah. Chalo. Audible? So tell me, is the issue at par or at premium? At par. Issue is at par or at premium?
सर प्रीमियम। पढ़ो ध्यान से। बोलो, how is the issue being made, at par or at premium? At premium. प्रीमियम। Premium. Look at it carefully. What is the issue price? It is 50 rupees का share issued at 60 rupees, right? 50 रुपए का शेयर 60 रुपए में जा रहा है. ओके, 50 का शेयर 60 रुपीज में जा रहा है. तो योर issue price is 60, that is 50 plus 10, and your breakup will be 25 on application including premium. That will be, I think, 15 plus 10. 15 plus 10. Then we have 20 on allotment. And we have 15 rupees on first and final call. तो यहाँ पर शेयर का फेस वैल्यू इज 50 rupees and issue price is 60 rupees. Okay, as I said earlier कि शेयर का फेस वैल्यू कुछ भी हो सकता है. 50 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द कंपनी जो उसको रखना है. ठीक है, तो इधर 50 plus 10 rupees है, it makes it 60 rupees, and 25 on application. So that is 15 plus 10, 20 on allotment and 15 rupees on first and final call. बराबर है. So total करोगे आप तो 25 plus 20 will be 45 plus 15 will become 60 rupees. So every shareholder is now supposed to pay how much? Every shareholder is now supposed to pay how much? 50 rupees या 60 rupees? 10. 60 rupees. 60 रुपया भरना है हर एक शेयर होल्डर को. बराबर है. 60 rupees भरना है. और 60 rupees में 50 is face value and 10 rupees is premium. Is that clear? 50 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया प्रीमियम. और ये प्रीमियम कौन से पार्ट के अंदर पड़ा हुआ है? This premium is lying with what? Application, allotment, first call, second call किसके साथ है? एप्लीकेशन के साथ है. ओके, प्रीमियम मैंने आपको बोला था, इफ यू रिमेंबर, इट कैन लाई विथ एनी पार्ट. It can lie with any part. It can lie with application or allotment or first call or second call. Depends on the company. आपको क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया होगा कि where is this premium lying. Okay, whether application, allotment, first call, second call. And if nothing would have been given in the problem, what you would have assumed? ये प्रीमियम किसके साथ पड़ा हुआ है? allotment के साथ पड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे अपने को पता है कि it is lying with application. तो ये प्रीमियम एडजस्ट कौन सा एंट्री में होता है? डज इट गेट एडजस्टेड इन बैंक का एंट्री और डज इट गेट एडजस्टेड इन ड्यू अमाउंट या ट्रांसफर अमाउंट या ट्रांसफर अमाउंट के एंट्री में एडजस्ट होता है. बराबर. अभी इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुआ है कि अंडर सब्सक्राइब हुआ कि इज इट सब्सक्रिप्शन एट पार? व्हाट इज द इश्यू?
It is At par. subscription at par, right? Sakshi Doshi, please pay attention, else you'll be out. सब्सक्रिप्शन एट पार है, ओके। 10,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, तो ना ही ओवर सब्सक्राइब है, ना ही अंडर सब्सक्राइब है। इट इज सिंपली सब्सक्रिप्शन एट पार। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन विद दैट। साक्षी, टेल मी द वेरी फर्स्ट एंट्री। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट? सर आपने जो असाइनमेंट भेजा है उसका पीडीएफ भेजो ना, ये डॉक्यूमेंट खुल नहीं रहा। कितनी बार मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं? डॉक्स व्यूअर हैव टोल्ड यू टू डाउनलोड दैट एंड कीप। स्क्रीन पे ही है इंफॉर्मेशन, देख के बता सकते हो। 10,000 शेयर्स का इश्यू। एकदम रफ में सॉल्व करा रहे हो। नहीं नहीं, फेयर में है। अरे भाई, खाली जर्नल ड्रॉ नहीं किया है मैंने, जर्नल ड्रॉ कर लो। सर 25,000। Yeah, it will be 10,000 multiplied by 25, that will be 2,50,000, not 25, 2,50,000. Okay, so 2,50,000 rupees आएगा आपका। This is application money received. Okay, कुछ रफ में नहीं है, पूरा असाइनमेंट फेयर में सॉल्व करना है। ठीक है, सो 10,000 शेयर्स 60 रुपीज, उसमें 25 रुपीज आपने एप्लीकेशन पे मांगा है। ओके, सो 25 into 10,000 will give you 2,50,000. Got it? Next entry, second entry, Ayushi Sangvi. Can you tell me the second entry? This is very important. Yes, Ayushi. Equity share application to equity share capital to share premium. Very good, very good, superb. Equity share application account debit to equity share capital account to share premium account. As I told you, यहाँ पर प्रीमियम was lying with application money. तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन मनी में है तो एप्लीकेशन के ही एंट्री में एडजस्ट करना है। अब कौन से एंट्री में, बैंक वाले एंट्री में कि ट्रांसफर एंट्री में? तो हमेशा ट्रांसफर एंट्री में। वो ड्यू अमाउंट या ट्रांसफर एंट्री बोलो, जो भी बोलो, कैपिटल के साथ ही प्रीमियम क्रेडिट होगा हर बार। ओके, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल पे हो, कहीं पर भी हो। अमाउंट्स क्या होंगे? कैन यू टेल मी आयुषी ओवर योर? 2,50,000 in equity share application. Yes. In capital 1,50,000. Very good. 10,000 multiplied by 15, 15 रुपया कैपिटल का है। And 1 lakh in share premium. And 1 lakh in share premium. This will be your 10,000 multiplied by 10. Okay, so this is application money transferred to capital and premium. Application money transferred to share capital and premium. You can also write application money transferred to capital and premium adjusted. And premium adjusted. ठीक है? Next one, third one. Niyati, what will be your third entry? Equity share allotment to equity share capital. Equity share allotment account debit to equity share capital account. ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे कोई प्रीमियम दिखेगा आपको? विल यू फाइंड एनी प्रीमियम इन अलॉटमेंट? नो, इट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन एप्लीकेशन। सो अभी प्रीमियम का स्टोरी खत्म हो गया। व्हाट शुड बी योर अमाउंट नियति ओवर हियर? 2 lakh. 2 लाख रुपीस। कैसे मिला आपको? 10,000 शेयर्स into 20 rupees. Okay, 10,000 shares into 20 rupees, 2 lakh rupees. Absolutely correct. This is allotment due on 10,000 shares.
at the rate of 20. Short, you can write the narration. Bank to equity share allotment. Bank to equity share allotment. Okay, bank account debit to equity share allotment account. Bank account debit to equity share allotment account. How much you will receive over here? Are there any no calls in arrears? So you'll receive full amount of 2 lakh rupees. You'll receive full amount of 2 lakh rupees. This is allotment money received. Allotment money received. Okay. Parshva, can you tell me the fifth entry? Equity share first and final call to equity share capital account. Very good. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. How much? 1,50,000. 1,50,000 कैसे मिला आपको? 10,000 into 15 रुपया. First and final call पे we are expecting 15 रुपया. 1,50,000 होता है. This is first and final call due. First and final call due. बराबर है? Then Hannah Satra, can you tell me the sixth entry? Bank to first and final call. बराबर है. Absolutely right. Bank account debit to equity share first and final call. Bank account debit to equity share first and final call. No calls in arrears. All the monies are duly received. So 1,50,000 rupees. First and final call received. First and final call received. Is that clear? So the 6 entries, I think your sum is over. First problem. All of you got that? Okay. Next one. Come to some number. ये वाले सम पे आ जाओ. विशाल लिमिटेड. Question 13. Not 13. 14. Vasant Limited. 14th question. This was first one. Assignment sheet पर ही 14th question पे आ जाओ सब लोग. Assignment sheet का 14th question. Okay. Vasant Company Limited. Sachi. Vasant Company Limited was incorporated with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares of 10 each. Are we supposed to do anything with this? No. Okay, that is just a piece of information, correct? Then the company issued 40,000 shares of 10 each at rupees 12 per share. So tell me, Sachi, is the issue at par, premium or discount? It's at premium. It's at premium. So 10 plus 2. आवाज नहीं आ रहा है.
10 plus 2, 12 rupees. Okay. So how will you break it down? It's rupees 2 on application. Then they have given it is 6 on allotment. And then it is 2 on first call. There are 4 parts. And 2 on final call. So you just add it up, you get 2 plus 6, 8 plus 2, 10 plus 2, 12. Now we don't know where is the premium. So what will you assume, Sachi? Where is the premium lying? Allotment. Allotment. कुछ नहीं दिया है तो premium is lying with allotment. So what is the breakup of allotment? It is 4 plus 2. Agree? 4 plus 2 is the breakup. Then आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है. Applications were received for 36,000 shares. Devanshi, is this over subscription or under subscription? Under subscription. So can you tell me the very first journal entry? Devanshi. Bank to equity share application account. Bank to equity share application account. What should be the amount? Bank to equity share application is very correct. What should be the amount now? 36,000 into 2. 36,000 into 2. Perfect. That comes to 72,000. 36,000 into 2, that makes it 72,000 being application money received. Being application money received. ठीक है? Manan Mehta, can you tell me the second entry? Sir, equity share application to equity share capital. Equity share application account debit to equity share capital account To share premium. to share premium. पक्का? नहीं आएगा इसमें. क्यों नहीं आएगा इसमें? Already premium पे issue किया हुआ है. ऑलरेडी प्रीमियम पे ही इश्यू होता है, तभी तो प्रीमियम आता है. इधर का को नहीं आएगा. लास्ट सम में आया था, ये सम में नहीं आएगा. क्यों? कैन यू टेल मी वंशी? प्रीमियम आएगा कि नहीं? हाँ? प्रीमियम आएगा कि नहीं यहाँ पे? Will you have premium in application? No. No. Why? Allotment में आएगा. Exactly. Premium is lying with allotment. Okay. Premium is lying with allotment. It is not lying with application money. Read the question. So allotment के due entry में आएगा premium. यहाँ पे नहीं आएगा. So here it will be simply 36,000 into 2. That will be 72,000. Anand Mehta. Level down. Yes, sir. Application transferred to capital. Application transferred to capital. Third one. सर Yes. सर भूमि को लो अंदर, वो वेटिंग रूम में. वो होमवर्क नहीं किया है उसने. आज नो लेक्चर फॉर her. Let her sleep. Mehak Rambia, tell me what will be the third entry? Equity share allotment account debit to equity share capital account to share premium. Equity share allotment account debit to equity share capital account to what? Share premium account. Perfect. Very good. अभी मुझे अमाउंट बोलो यहाँ पे क्या होंगे. Equity share allotment में 36,000 into 6 Yes. और capital में 36,000 into 4 और नीचे बराबर. 72,000. 36,000 into 2. हाँ. So this will be 1,44,000 and this will be 72,000. 36,000 into 2. Okay. This part is very important. Premium यहाँ आएगा. Okay. Allotment के साथ था तो premium will come in the allotment entry being allotment money due on 36,000 shares. Is this clear, all of you?
सो अलॉटमेंट के साथ था प्रीमियम तो अलॉटमेंट के एंट्री में, अगर एप्लीकेशन के साथ होता तो एप्लीकेशन के ट्रांसफर एंट्री में, ठीक है। फोर्थ एंट्री नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, फोर्थ एंट्री, ध्रुव पासवर्ड, टेल मी द फोर्थ एंट्री, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। बैंक अकाउंट डेबिट इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment. वेरी गुड, सुपर। बैंक कॉल्स इन अरियर्स, यहाँ पे नजर जानी चाहिए सबकी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर पी ने 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी डिफॉल्ट किया हुआ है, तो बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हेलो, बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? विल आंसर दिस मृण्मयी, टेल मी हाउ मच विल राइट इन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ओवर हियर? 216,000. 216,000, 2,16,000. Okay, and how much will be call in arrear? How much will be call in? 500 into 6. 500 into 6 rupees. 3,000. Very good, 3,000. Why 500 into 6? 500 shares पे default हुआ है. Can you see that? 6 रुपया नहीं मिला है. So how much will be in the bank? 2,13,000. बराबर है. This is allotment money received and CIA adjusted. Allotment money received and CIA adjusted. Okay. Entry number 5. Entry number 5, Prem. Tell me, what will be the fifth entry? Equity share first and final call to equity share capital. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. How much? 36 into 272. हाँ, first call. Equity share first call. First call to equity share capital. 36,000 into what? 2. Why 2? Because you are asking for 2 rupees 2 rupees. on first call. बराबर है? Not final, because there is one more after this. So this is first call due. First call due. Okay. बराबर है? Next one. Janvi, can you tell me the next entry? Bank call in arrear to equity share first call. Bank account debit, call in arrear account debit to equity share first call account. Perfect. Bank call in arrear to equity share first call account. Okay. How much will write in first call? How much will write in first call? 72,000. 72,000, correct. And how much in call in arrear? Look at the problem. Is 16,000, 1,600. कैसे किया? 800 into 2. Absolutely right. Why 800? 500 of previous and 300 of now. Perfect. 500 of P and 300 of Q. Q भी ज्वाइन हो गया अभी डिफॉल्टिंग में. और याद है आपको बताया था, अगर कोई बंदा अलॉटमेंट नहीं भर रहा है तो आगे का कोई पार्ट नहीं भर रहा है. तो P तो है ही और अभी Q भी ज्वाइन हो गया, तो टोटल डिफॉल्टिंग अमाउंट इज 1600. 800 into 2. बराबर है. दिस इज first call received and CIA adjusted. First call received and CIA adjusted. Okay. Seventh one, seventh entry.
Will be your seventh entry, Yashvi Patel. Equity share second and final call account to equity share capital account. Equity share second and final call account debit to equity share capital account. कितना आएगा बताओ? 72,000. Again 72,000 because final call पे भी 2 रुपया है, तो that makes it 36 into 2, 72,000. बराबर है? This is final call due. Final call due. 8th entry. Meeti, what is your 8th entry? Bank call in arrears to equity share second and final call. बराबर है, perfect है. Bank call in arrear to equity share second and final call account. कितना पैसा will you write in final call? 72,000. Absolutely right. कितना पैसा you will put it under CIA over here? 1,000 into 2. 2,000. Very good. Why 1,000 into 2? Because P now there are Q1. 3 defaulters. P and Q तो थे, R भी join हो गया, तो P, Q and R 1,000 into 2 that is 2,000. So बैंक में आएगा 70,000 rupees. Okay. The second call received and CIA adjusted. Second call received and CIA adjusted. Is that clear? यहाँ तक बैठ रहा है दिमाग में? सब कुछ नॉर्मल था, एक प्रीमियम आ गया था अलॉटमेंट में. ओके, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट में कर दिया प्रीमियम को. अभी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू दीज शेयर्स? व्हाट इज हैपनिंग टू दीज शेयर्स? आगे पढ़ो. ऑल द शेयर्स वर forfeited and reissued at 11 per share and then pass the journal entries. Now we are forfeiting the shares. So Shikha Kothari, how many shares will be forfeit? How many shares will be cancelled? Yes, sir. How many shares should we cancel? 1,000. Very good. P, Q and R तीनों के मिला के shares cancel करने. ठीक है. Tell me the journal entry for this. Yeah. Equity share capital, Yes. 2 calls in arrear, Okay. share forfeiture. Okay. लेकिन यहाँ पे catch है. Question में premium भी था. तो Yeah. प्रीमियम के लिए क्या रूल अप्लाई करना है, याद है आपको? लास्ट Premium लेक्चर once में. received should not be debited. हाँ, प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड एंड नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. ओके, तो इधर पहले शेयर प्रीमियम लिख ही दो, फिर हम देख लेते हैं किसको डेबिट करना है किसको नहीं करना है. अमाउंट तो लिख लेंगे. तो एंट्री में लिख दो पहले ही, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर. ओके, क्योंकि द इश्यू वाज एट प्रीमियम, तो जब आप फॉरफीट करोगे तो वहां पर भी आप प्रीमियम लिख ही दो पहले से ही. अब मुझे बताओ कैपिटल में क्या अमाउंट लिखोगी शिखा? Yes, एक मिनट. Capital में 1,000 into 11. 11. Sorry, 10. 10 rupees face value. 1,000 into 10, that will be your face value. Okay, called up value, basically called up value. जितने से कैपिटल क्रेडिट हुआ है उतने से कैंसिल कर रहे हो. तो वी आर कैंसिलिंग एट द एंड, राइट, आफ्टर सेकंड कॉल. सेकंड कॉल के बाद कैंसिल कर रहे हैं ना, तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे होते ना तो 8 रुपीज से मल्टीप्लाई होता. अलॉटमेंट के बाद कैंसिल कर रहे होते तो 6 रुपीज से मल्टीप्लाई होता. कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है. जितने से क्रेडिट किया है उतने से कैंसिल कर रहे हो. सिंपल लॉजिक है. तो यहाँ पर यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 रुपीज. तो 1,000 into 10 विल गिव यू 10,000 रुपीज. ठीक है. उसके बाद प्रीमियम का रूल, वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. सब लोग क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ पी, क्यू और आर में से अलॉटमेंट किसने भरा है? Q और R. अलॉटमेंट किसने भरा है? पैसा मिला है. क्यू एंड आर ने भरा है. पी ने अलॉटमेंट नहीं भरा है, क्यू और आर ने अलॉटमेंट भरा है. कैन यू ऑल सी दैट? अभी जिसने अलॉटमेंट भरा है उसने प्रीमियम भी भरा होगा. अगर उसने भरा है तो हमने रिसीव किया होगा, रोकड़ा आ चुका है.
तो प्रीमियम जो रिजर्व में पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड एंट्री में हमने पूरा प्रीमियम क्रेडिट किया हुआ है ना सब शेयर्स पे 36,000, 36 के अंदर पी क्यू आर तीनों के शेयर्स है, तो इसमें क्यू और आर ने तो प्रीमियम भरा है, मतलब इनका प्रीमियम क्रेडिट रिजर्व में पड़ा हुआ है, सामने कैश भी एसेट में, तो प्रीमियम रिसीव्ड है, वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड। तो मुझे बताओ क्यू और आर का प्रीमियम विल बी डेबिट? नो, क्यू और आर के लिए 4 फीचर में प्रीमियम डेबिट नहीं करना है, क्योंकि जेन्युइनली प्रीमियम में क्रेडिट है, रिजर्व में क्रेडिट पड़ी हुई है और पैसे आ चुके हैं, कैश आ चुका है, so no need to debit that premium. Tell me, what about P? Will you debit P's premium? Yes. Yes. Why? Because P, did he pay the allotment money? No. No, P did not pay the allotment. That means did he pay the premium? No. No. अगर अलॉटमेंट नहीं भरा तो प्रीमियम भी नहीं भरा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। क्यों डेबिट करना है? क्योंकि ऊपर फेक क्रेडिट पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा क्रेडिट है, प्रीमियम पड़ा है, सामने कॉल इन अरियर है, रोकड़ा तो आया नहीं है, पैसा तो आया नहीं है, तो प्रीमियम के सामने कॉल इन अरियर थोड़ी चलेगा, कैश होना जरूरी है। ओके, तो रूल याद रखना, प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम किसके लिए डेबिट होगा? पी क्यू आर तीनों के लिए, पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए, क्यू आर के लिए, खाली पी के लिए? P के लिए। खाली पी। पी का कितना शेयर्स था? 500. 500 शेयर्स था, इनटू प्रीमियम कितना था? 2 रुपया। प्रीमियम विल बी डेबिटेड बाय 1000 रुपीज। ओके, टू कॉल इन अरियर, तीनों का कॉल इन अरियर ऐड कर लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2000 प्लस 1600 दैट इज 3600 प्लस 3000 that is 6600. 6600 is your call in arrear. And what amount you will show under 4 feature? 6600. 5400. नहीं, 4400. 4,400. 4400. 6600 plus 4400 will give you 11,000. Got it? This is 4 feature cancellation of 1000 equity shares. प्रीमियम का लॉजिक क्लियर है? वंस रिसीव्ड डोंट डेबिट, नॉट रिसीव्ड शुड डेबिट, तो कर दो डेबिट, जो नॉट रिसीव्ड है उसी को डेबिट करना, फेक क्रेडिट को नलिफाई करना है। अभी ये जो शेयर 4 फीचर है, ये 4400, इसमें कौन सा पैसा पड़ा हुआ है? जो पैसा वो लोग ने भरा है कि जो पैसा वो लोग ने नहीं भरा है? जो पैसा वो लोग ने भरा है, किसने भरा है? पी क्यू और आर ने मिलके भरा हुआ है, बराबर है? पी ने क्या भरा था? पूछो अपने आप से, पी ने क्या भरा था? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। एप्लीकेशन भरा था, और उसके कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स पे उसने कितना रुपया भरा होगा? 2 रुपया, फिर भाग गया, तो 500 इंटू 2 1000 रुपया भरा है। ये 4400 का ब्रेकअप बता रहा हूं मैं, ये तीनों का मिला के हड़पा हुआ पैसा है, तो तीनों में से इंडिविजुअली कितना हड़पा होगा ये भी ढूंढना जरूरी है, आगे जाके बहुत बहुत काम आएगा आपको। तो पी ने क्या भरा था? तो खाली एप्लीकेशन, तो 500 इंटू 2000। क्यू ने क्या भरा था बताओ मुझे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो उसके कितने शेयर्स थे क्यू के? 300. 300 इंटू व्हाट शुड आई डू? शुड आई डू 2 + 6 8 और 2 + 4 6? 4 फीचर के लिए कितना लो क्यू का? 2 + 4. +4 लूं कि 2 + 6 लूं? 2 + 4. Why 2 + 4? भरा तो उसने 2 + 6 दोनों है। Why 2 + 4? 2 रुपया। हाँ, 2 रुपया प्रीमियम में पड़ा हुआ है ऊपर, उसको वापस 4 फीचर में नहीं लेना है, याद है बताया था लास्ट लेक्चर। शेयर 4 फीचर में कौन सा अमाउंट पड़ा है? द मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। शेयर 4 फीचर, ये शेयर 4 फीचर में जो कंपनी ने हड़पा है ना पैसा, इसमें कौन सा अमाउंट लेना है? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, नॉट टुवर्ड्स प्रीमियम। प्रीमियम ऊपर अलग से क्रेडिट में है, वापस मत ले लो, डबल काउंटिंग हो जाए। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक ओनली द अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल, 6 रुपीज। कैसा 6? 2 ऑन एप्लीकेशन एंड 4 ऑन अलॉटमेंट टुवर्ड्स कैपिटल।
2 ऑन एप्लीकेशन वो पूरा कैपिटल की तरफ था, और 4 रुपया ऑन अलॉटमेंट वो कैपिटल की तरफ था, तो टोटल 6 रुपया कैपिटल की तरफ भरा है उसने। ये हड़प लिया कंपनी ने 1800 रुपया। प्रीमियम का भी 2 रुपया हड़पा है, वो सेपरेट रिजर्व में पड़ा हुआ है। प्रीमियम अकाउंट इज अ सेपरेट रिजर्व एंड शेयर फॉर फीचर इज अ सेपरेट रिजर्व, सो शो देम सेपरेट। ठीक है। तीसरा आर ने क्या भरा है बताओ मुझे, व्हाट डिड आर पे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो अभी आर ने एक्चुअली भरा है 2 रुपया, 6 रुपया और 2 रुपया। तो शुड आई मल्टीप्लाई हिज 200 शेयर्स with 2 plus 6, 8 plus 2, 10? How much should I multiply it with? 2 plus 4 plus 2. 2 plus 4 plus 2. Again, कौन सा पता है 4 फीचर में? अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, नॉट टुवर्ड्स प्रीमियम। तो 2 रुपया एप्लीकेशन का, 4 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का। 2 plus 4 plus 2, 8 rupees is towards capital. Is this clear? ये 8 रुपया कैपिटल को कम करके हमने डाल दिया 4 फीचर में। 200 इंटू 8, 1600 रुपया। ओके, तो ऐसे मत समझना प्रीमियम हड़पा नहीं है, इसका प्रीमियम भी हड़प लिया, लेकिन सेपरेट प्रॉफिट अकाउंट में, वो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा हुआ है। नया बात। सो टोटल करके देखो, 1000 प्लस 1800 प्लस 1600, यू शुड गेट हाउ मच? 4400। गॉट इट? अपने आप टैली होगा, इट विल सेल्फ टैली। तो ऐसे आप खाली क्वेश्चन को पढ़ के ये अमाउंट्स ढूंढ सकते हो। हाँ, आप खाली क्वेश्चन को पढ़ के ये अमाउंट ढूंढ सकते हो, आपको कुछ ऊपर सोल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको मालूम है पी ने क्या भरा, आपको मालूम है क्यू ने क्या भरा, आपको मालूम है आर ने क्या भरा। क्वेश्चन में ब्रेकअप भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली। यस और नो? ये चीज आप क्वेश्चन में देख के कंसेप्ट समझो। 4 फीचर में कौन सा पैसा पड़ा हुआ है बताओ मुझे सब लोग। 4 फीचर में कौन सा पैसा है? अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। डज इट इंक्लूड अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स प्रीमियम? No. नो। 4 फीचर में यू ओनली टेक द मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। अच्छा, तो यही लाइंस पे दिमाग लगाओ सब लोग, सीए में ऐसे ही दिमाग चलना चाहिए। 6600 रुपीज, ये क्या है? 6600 क्या है? ऊपर हमने लिखा हुआ है कॉलिनरी। वो खाली पी का सीआई है, क्यू का है कि आर का है कि तीनों का है? तीनों का। अब मुझे इंडिविजुअली सोच के बता सकते हो क्या होगा ब्रेकअप इसका? पी ने क्या भरा था? एप्लीकेशन उसने क्या नहीं भरा है? अलॉटमेंट कॉल और सेकंड सेकंड कॉल। कॉल। कितने शेयर्स थे उसके? 500 शेयर्स थे। अभी कॉल इन अरियर कोई भेदभाव नहीं करता है, उधर कुछ टेंशन नहीं है कि प्रीमियम के तरफ नहीं भरा कि कैपिटल की तरफ नहीं भरा, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। कॉल इन अरियर मतलब डिफॉल्ट, प्योर डिफॉल्ट। तो जो नहीं भरा सब कचरा कॉल इन अरियर है, समझ रहे? जो नहीं भरा सब कॉल इन अरियर है। तो क्या नहीं भरा सब कुछ ऐड कर लो। ये 6 रुपया, ये 2 रुपया, ये 2 रुपया, 6, 2, 8 और 2, 10 रुपया। तो भाई ने 500 इंटू 10, 5000 रुपया नहीं भरा। समझ में आ रही है बात? कॉल इन अरियर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि इसका भरा नहीं है कि उसका भरा नहीं है, किसका भी नहीं भरा। जो नहीं भरा सब कॉल इन अरियर। चलो सेम लाइन पे सोच के बताओ, क्यू ने क्या नहीं भरा? व्हाट डिड क्यू नॉट पे? फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो कितना लोगे क्यू का? 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, तो कितना होता है? 4 रुपया। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 300 इंटू 4, 1200 रुपया। व्हाट डिड आर नॉट पे? फाइनल कॉल। हाँ, तो 200 इंटू कितना लोगे? 2 रुपया, तो 400 रुपया। ये सबको ऐड करो, आपको आंसर आना चाहिए ऊपर वाला 6600 रुपया। 5000 plus 1200 plus 400, this is 6600। तो लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में। शेयर 4 फीचर में ओनली द मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, बट कॉल इन अरियर में सब भंगा है, सब कचरा। जो नहीं भरा सब डाल दो उधर, कॉल इन अरियर में सब कुछ आ जाएगा। ओके, जो भरा उसको हटा के जो नहीं भरा सब ऐड कर दो, यू विल गेट कॉल इन अरियर। इज दिस क्लियर?
ऐसे इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करना सीख लो, जितना सीख लोगे उतना काम आएगा। और शेयर सीए फाउंडेशन में तो बहुत ही काम आएगा, 12th में भी ऐसे सम्स है अभी आपको, उधर भी काम आएगा। ठीक है, अभी ये एंट्री के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द कंपनी डूइंग आफ्टर 4 फीचर? रीइश्यू कर रही है, रीइश्यू कर रही है। आदित्य शाह, कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर रीइश्यू? बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या प्राइस है, जरा रीइश्यू का चेक तो करो वहां पे। 11, तो मतलब व्हाट वाज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? 10, 10 का शेयर अगर आप 11 में रीइश्यू कर रहे हो तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? इज इट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीइश्यू? सर पर पहले प्रीमियम पे था ना, इसलिए। Does not matter boss, I told you, if you remember, 10 रुपए का शेयर अगर 9 रुपए में जा रहा है तो लॉस 4 फीचर से एडजस्ट करना है, बट अगर 10 का शेयर 11 में जा रहा है तो प्रॉफिट हमेशा कौन से अकाउंट में जाएगा? शेयर फॉर। रॉन्ग। कौन से अकाउंट में जाएगा ऊपर का मलाई? 10 का शेयर अगर 11 में रीइश्यू कर रहे हो तो 1 रुपया किधर डालोगे? शेयर प्रीमियम। 4 फीचर में नहीं जाता है। लॉस है तो 4 फीचर से एडजस्ट करने का, प्रॉफिट है तो हमेशा प्रीमियम, प्रॉफिट है तो हमेशा हमेशा प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। प्रॉफिट कभी भी 4 फीचर में नहीं जाएगा। शेयर 4 फीचर की लिमिट है ना, खाली कैपिटल के जितनी होती है, कैपिटल तक जो पैसा आया हड़पा, जो लॉस है वो 4 फीचर। फेस वैल्यू के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर जो कमा रहे हो वो सब मलाई प्रीमियम। सेपरेट रिजर्व प्रीमियम, डोंट ट्रांसफर इट टू 4 फीचर, दैट विल बी रॉन्ग। Anything over and above face value is premium. Remember that. Anything over and above face value will go to premium. So bank to capital to premium, and how much? कितना shares are we reissuing now? 1000। 1000. बैंक में कितना आएगा? 11 रुपीज। कंपनी अच्छा है, नाम खराब नहीं हुआ है, 10 का शेयर 11 में दे रही है, पब्लिक भी खरीदेगी क्योंकि उनको भरोसा आगे जाके प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में। शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 1000 into 10, that will be 10,000, एंड प्रीमियम में कितना आएगा? तो 1000 into 1, that will be 1000। बोलो मुझे, अगर यहाँ पे 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में जाता तो 1 रुपए का लॉस किसको डेबिट कर लेते? 4 फीचर। 4 फीचर, शेयर 4 फीचर। 10 का शेयर 8 रुपए में जाता तो 2 रुपए का लॉस किसको डेबिट करते? 4 फीचर। 4 फीचर। 10 का शेयर 7 रुपीज में रेशियो होता तो 3 रुपए का लॉस किसको डेबिट करते? 4 फीचर। 10 का शेयर 6 रुपए में जाता तो 4 रुपए का लॉस किसको डेबिट करते? 4 फीचर। बट 10 का शेयर 12 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो तो 2 रुपया किसको क्रेडिट करोगे? प्रीमियम को। 10 का शेयर 15 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो तो 5 रुपया किसको क्रेडिट करोगे? शेयर प्रीमियम को। 10 का शेयर 11 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट किसको क्रेडिट करोगे? प्रीमियम। जो फेस वैल्यू के नीचे है उधर तक ही वो 4 फीचर दिखेगा, फेस वैल्यू के ऊपर तो प्रीमियम 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 प्रीमियम, मलाई मलाई मलाई। इज दैट क्लियर? ये सिली मिस्टेक बहुत लोगों का हो जाता है, कीप दैट इन माइंड। फेस वैल्यू के ऊपर कभी 4 फीचर नहीं आएगा जिंदगी में, दिस इज ऑलवेज प्रीमियम। ओके, इसका रीजन भी मैंने बोला था, नहीं तो कंपनी टोपी घुमाते रहेगा, एक का 4 फीचर दूसरे में एडजस्ट करते रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये हमेशा याद रखना, फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा प्रीमियम। नाउ मुझे बताओ, इसके बाद क्या करेगा कंपनी? खत्म हो गया कि कुछ और बाकी है? कैपिटल रिजर्व। हाँ, वो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मुफ्त वाला एंट्री। शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री तो करना ही पड़ेगा बॉस, कोई रास्ता ही नहीं है। शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि टेम्पररी रिजर्व से वी हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट टू
परमानेंट रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करना है, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा पड़ा है उसको खाली करो और डाल दो कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम को टच नहीं करना, प्रीमियम अलग रिजर्व है, शेयर फॉरफीचर अलग है। मुझे देख के बताओ शेयर फॉरफीचर में आज की तारीख में कितना प्रॉफिट पड़ा? 4,400। ये रहा बॉस 4,400। कैन यू सी दैट? माइनस डेबिट में कुछ लॉस हुआ क्या अपना? नो, कुछ लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस होता तो कम कर देते, कुछ लॉस नहीं है। तो आई थिंक अभी 4,400 ही पड़ा हुआ है, तो कितना ट्रांसफर करोगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व? 4,400। ओके, प्रीमियम अलग रिजर्व है, शेयर फॉरफीचर अलग है, दोनों को भेलपुरी मत बना देना। सर, हाँ, शेयर प्रीमियम है वो शॉर्ट टर्म है ना? यस, शेयर प्रीमियम नहीं, शेयर फॉरफीचर इज अ शॉर्ट टर्म। और शेयर Temporary. प्रीमियम लॉन्ग टर्म है? Long term permanent reserve like capital reserve. Share premium is a permanent long term reserve like capital reserve. No need to touch that, no need to transfer that to any other account. Temporary reserve में अपने पास खाली share forfeiture है, तो balance in share forfeiture transfer to capital reserve. Share forfeiture को खाली बंद करके capital reserve में डाल देने। Is this clear? तो सर उसका पैसा हम लोग किधर यूज करते हैं? प्रीमियम का, मतलब नॉर्मल प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का बताया था ना, यूजेज में थोड़ा बहुत फर्क है। कैपिटल रिजर्व का पैसा आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज कर सकते हो, आप फ्री बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हो, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप पे कन्वर्ट करना है वहां पर यूज कर सकते हो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर प्रीमियम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। शेयर प्रीमियम का पैसा आप पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर आप इसमें यूज कर सकते हो उसको, अपना CRR क्रिएट करना है, उधर शेयर प्रीमियम यू कैन यूज। CRR क्रिएशन में कैपिटल रिजर्व यू कैन नॉट यूज। CRR तुमको आएगा इंटर में, सीए इंटर में है ये टॉपिक, अपना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आता है। तो उधर हम लोग जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, वापस देते हैं पैसा, तो अपने को उतना क्वांटिटी फ्री रिजर्व का नॉन फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो वहां पे फॉर द क्रिएशन ऑफ CRR यू कैन यूटिलाइज शेयर प्रीमियम अकाउंट, यू कैन यूटिलाइज प्रीमियम टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन बायबैक। तो ये सब यूज, आपको डिस्काउंट जो फिक्टिशियस एसेट्स है ना, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड ऑल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, गुडविल, ये सब राइट ऑफ करने के लिए शेयर प्रीमियम यूज कर सकते हो। तो कैपिटल रिजर्व उसके लिए यू कैन नॉट यूज फॉर टू राइट ऑफ फिक्टिशियस, यू कैन यूज कैपिटल रिजर्व टू राइट ऑफ गुडविल। तो ये एक्ट में आपको यूजेस दिए गए हैं स्पेसिफिक, इसके लिए दोनों रिजर्व अलग अलग दिखाने हैं, दोनों कैपिटल प्रॉफिट, दोनों लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लेकिन यूजेस थोड़े बहुत अलग है। फिक्स्ड एसेट दोनों के पैसे से खरीद सकते हो, कैपिटल रिजर्व से भी खरीद सकते हो, प्रीमियम से भी खरीद सकते हो। फुली पेड अप बोनस शेयर्स भी दोनों में यूज कर सकते हो, प्रीमियम शेयर प्रीमियम भी यूज कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व भी यूज कर सकते हो। पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है, ऐसे बोनस शेयर्स आप सिर्फ कैपिटल रिजर्व से दे सकते हो, प्रीमियम से नहीं दे सकते। तो ये रेस्ट्रिक्टेड यूज की वजह से प्रीमियम अकाउंट सेपरेटली दिखता है। ठीक है, तो प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को मर्ज मत करना, दोनों लॉन्ग टर्म नेचर के प्रॉफिट है, लेकिन यूजेस की वजह से दोनों को अलग अलग दिखाना। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको? यूजेस वगैरह आपको नहीं है अभी रिजर्व्स के, यहाँ पे खाली थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, प्रीमियम अलग रखना है, कैपिटल रिजर्व अलग रखना है। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर का जो पैसा है टेम्पररी प्रॉफिट, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कि शेयर प्रीमियम? बोलो। कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर विल बी ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट सम पे। सर एक बार वो तीनों का ब्रेकअप दिखाओ ना, शेयर फॉरफीचर का। ये आर की एंट्रीज पास नहीं करी ने इसमें, करना है वही नेक्स्ट। आर वाला भी है, वो करता हूँ। आर वाला बाकी है थोड़ा पार्ट। ये रहा अपना शेयर फॉरफीचर वाला। ठीक है, उसके बाद केस 2, यहाँ पे आपका एक्चुअली एक सम खत्म हो जाता है, ऊपर एक सम यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री में खत्म हो चुका है। फिर नीचे दिया हुआ है केस 2, पढ़ो उधर क्या दिया हुआ है। केस 2 में क्या मेंशन किया है, ओनली आर्स शेयर वेर रीइश्यूड एट 9 रुपीज पर शेयर। अभी ऐसा मत समझना कि PQR का भी रीइश्यू
किया और फिर आर का भी अलग से रीइश्यू किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। PQR का अलग केस था, ऑल शेयर्स रीइश्यू खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ आर का रीइश्यू का सेपरेट केस हम लोग ले रहे हैं। तो सेपरेट केस में क्या होगा, आपका यहां तक का एंट्री सेम रहेगा। ये काट मत देना, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप मत काट देना। तो 9th एंट्री तक आपका सम सेम है, आपने सब कॉल वॉल मंगाया, फिर सब शेयर्स कैंसिल कर दिए। अभी रीइश्यू करने की बारी आई तो आप सब शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रहे हो, सिर्फ आर के शेयर रीइश्यू कर रहे हो। ठीक है, मुझे जरा पढ़ के बताओ आर के कितने शेयर्स थे? 200। आर के 200 शेयर्स थे, तो 200 शेयर्स का ही रीइश्यू एंट्री करना है आपको। ओके, 9th एंट्री तक सेम है, तो 10th एंट्री आपका क्या रहेगा? व्हाट इज द रीइश्यू एंट्री गाइस? बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी क्यों शेयर फोर फीचर आया? वाई शेयर फोर 9 फीचर रुपए में बेचा ना। हाँ, अभी देखो आर का शेयर हमने 9 रुपए में रीइश्यू किया ना, तो लॉस हो गया है। तो लॉस तो हमेशा आपको कहां से उठाने का? शेयर फोर फीचर से। तो बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मुझे जरा सोच के बताना अमाउंट्स क्या लिखोगे आप? व्हाट अमाउंट्स यू विल राइट? 1800, 200, 2000। Yeah. What amounts you will show over here? Bank share forfeiture to equity share capital. How much you will write in bank? बैंक में क्या प्राइस पे रीइश्यू किया है? 200. बैंक में what price you have reissued? 200 into 9, that is 1800. कैपिटल में कितना आएगा? तो 200 into 10, that is 2000, एंड लॉस हो गया आपका 200 रुपीज का। इज दिस क्लियर? All of you got that? So this is reissue of R share. मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है सबका शेयर रीइश्यू करो फिर वापस आर का शेयर रीइश्यू करो? इज इट पॉसिबल? नो। या तो सबका करो या तो इंडिविजुअली करो। यहाँ पे सबका पहले ही हो चुका है, यहाँ पे वो खत्म है, अलग केस था, इंडिपेंडेंट केस था, फक दैट। नाउ यू आर रीइश्यूइंग ओनली आर शेयर, फोकस ऑन आर। ओके, कैंसिल सबका किया है, आर का ही रीइश्यू किया। अभी रीइश्यू के साथ एक और एंट्री चिपक जाएगी हमेशा, व्हाट इज दैट? कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टेम्पररी रिजर्व को परमानेंट रिजर्व में डालना है। मुझे बताओ कितना पैसा विल यू ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व? 1400। व्हाई नॉट 4400 माइनस 200? खाली आर का किया है भैया, तो आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस। आर का प्रॉफिट किधर है? इधर है, ये रहा आर का प्रॉफिट। आर का प्रॉफिट यहाँ पे 1600 रुपया। कैन यू सी दैट? आर का हड़पा हुआ प्रॉफिट 1600 है। 1600 minus 200 will give you how much? 1400. 1400 rupees is what you transfer from share forfeiture to capital reserve. समझा कि नहीं? बताओ। Got it? What if P का शेयर रीइश्यू होता तो ट्रांसफर कितना करते? P का शेयर रीइश्यू होता और समझो 200 रुपया ही लॉस होता। P के रीइश्यू में 200 रुपए का ही लॉस होता, तो how much you would have transferred in case of P? 800. How 800? P का प्रॉफिट माइनस P का लॉस, 1000 माइनस 200। और Q का भी लॉस समझो 200 होता, तो Q का कितना ट्रांसफर होता है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल? 1600। 1800 माइनस 200। गॉट इट? तो इंडिविजुअली रीइश्यू कर रहे हो तो इंडिविजुअल प्रॉफिट लो, सबका क्यों ले रहे हो? सबका क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बाकी शेयर्स अभी भी लेफ्ट आउट है ना रीइश्यू करने के लिए। जब रिमेनिंग शेयर्स रीइश्यू होंगे तभी उनका फोर फीचर ट्रांसफर करो। अभी जिसका रीइश्यू कर रहे हो उसी का ट्रांसफर करो। पी का कर रहे हो तो पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, क्यू का कर रहे हो तो क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस।
आर का कर रहे हो तो आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस। सर ऐसा हो सकता है कि आर का 200 रीइश्यू करवाया और क्यू का 300 में से 100 रीइश्यू करवाया। यस, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या करने का, आर का पूरा है तो आर का पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस, बराबर। और क्यू का 300 में से कितना करवाया यू आर सेइंग? 100। तो क्यू का 300 शेयर का प्रॉफिट कितना है? 1200। तो 100 शेयर्स का कितना होगा? 400। 400 माइनस लॉस, दोनों का प्रॉफिट ऐड करो माइनस दोनों का लॉस माइनस करो, समझा? हेलो, डिड यू गेट इट? तो सर वो प्रॉफिट बाद में सब शेयर के ऊपर देखने का कि वो भी सिर्फ 100 शेयर के ऊपर देखने? 100 शेयर के ऊपर ही ना यार, वही तो बात चालू है अभी। अगर P का 200 R का 200 शेयर रीइश्यू किया है और Q का 100 ही शेयर रीइश्यू किया है, तो R का 200 शेयर का है 400 रुपया प्रॉफिट है, Q का 100 शेयर का ही देखने का प्रॉफिट। 100 शेयर का कितना रहेगा? 400 रुपया। 400 400 800, 800 रुपया प्रॉफिट माइनस लॉस जो भी है उतना अमाउंट ट्रांसफर करो, समझा? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ही लेने का हर बार। ओके, तो सर जब भी हम लोग शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं तो उसमें भी 100 शेयर्स के आएगा ना, फिर 100 और 200 शेयर। तो जब लॉस कैलकुलेट करेंगे तो तभी 100 शेयर्स भी आएगा ना क्यू का? हाँ, लॉस तो मतलब 300 शेयर जी रीइश्यू किया है ना, हाँ तो उस पे ही तो आएगा 300 इंटू ही जो भी आएगा लॉस, मतलब बराबर। 200 प्लस 100, 200 आर का प्लस 100, 200। आर का 200 और क्यू का 100। लॉस भी 300 का, प्रॉफिट भी 300 का। ओके, वो हमेशा प्रोपोर्शनेट ही रहेगा लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9 ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question. Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of 10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share on allotment, including 2 rupees premium, and on allotment, and 4 per share on call. So how is the share being issued? Par, premium, कैसा इश्यू हो रहा है? पढ़ो। प्रीमियम तो 10 + 2 12 रुपए में इश्यू है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ मुझे एप्लीकेशन पे कितना दिखाओगे? यहाँ पे एप्लीकेशन पे 5 रुपया है, नहीं एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो इट इज बेसिकली 3 + 2 एंड 4 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट ही फाइनल है, 4 + 5 9 और 3 12 रुपया हो गया, सबको 12 रुपया भरना है। एंड वेयर इज द प्रीमियम लाइंग विथ? Where is the premium lying with? Allotment. अभी पढ़ो आगे क्या दिया है। All the shares are subscribed for. तो is it over subscription, under subscription or subscription at par? Par. Subscription at par, बराबर है। तो no over subscription का लफड़ा over here. Subscription at par है। Now let us check how to go ahead. First entry. Just Doshi, please tell me the first entry क्या होना चाहिए? Just Bank to equity share application. Bank account debit to equity share application account. Okay, एकदम ध्यान से देखना सब लोग। This is a CA Foundation hit problem. Okay? CA Foundation का hit problem. ये आपको खुद से आ गया तो समझ लो आपका लेवल क्या है। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा? देखो वहां पे ध्यान से, होल आंसर जस्ट, या टेल मी हाउ मच? 30,000 into how much you said? into 3. 30,000 into 30,000 into 3, that will be 90,000 rupees. 90,000 rupees. Okay, this is application money received. शॉर्ट में नरेशन लिख रहा हूं मैं।
Second entry, Ishita Solanki. Can you tell me the second entry? Equity share application to equity share capital. Equity share application account debit to equity share capital account. Equity share application to equity share capital. You transfer the amount. How much you will write over here? Sorry, 90,000. 90,000. No excess, no refund, no allotment, no prorata. जितना आया पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो. Equity share application transferred to equity share capital. ठीक है. Third one will answer Dev Gandhi. What will be the third entry over here? Think. Sir, allotment. Yeah, capital. allotment. हाँ, equity share allotment account debit to capital. और भी कुछ? And premium. Yes, to premium, to share premium account. Very good. Because allotment के साथ premium पड़ा हुआ इसके है. साथ ही premium. Perfect. So equity share allotment to equity share capital to share premium account. Perfect. अब बता मुझे जरा सोच के अमाउंट्स क्या होंगे. देव गांधी, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिखोगे आप? 90. नहीं, अलॉटमेंट टोटल कितना चाहिए आपको? How much you want on allotment? 5 rupees per. हाँ, so 30,000 into 5 rupees. That comes to 1,50,000. To capital कितना होगा? 30,000 into what? Into 3. 3 rupees. Because out of 5, 3 is capital and 2 is premium, right? So 90,000 will go to capital, and how much will be premium? And 30,000 30,000. into 2. That will be 60,000. 60,000 rupees. Got it? This is your allotment due and premium adjusted. खुशी दोषी, एकदम ध्यान से जरा क्वेश्चन पढ़ना और मुझे बताना. What will be the entry for allotment? Bank calls in arrears to equity share allotment. Perfect. Bank account debit, calls in arrears account debit to equity share allotment account. Bank calls in arrears to equity share allotment. कहाँ से टपका ये call in arrears? पढ़ो. या क्या दिया हुआ है? Yes, खुशी. It's given कि राम ने allotment नहीं भरा था. अलॉटमेंट नहीं भरा था, बराबर है. और श्याम ने कॉल मनी नहीं भरा है, बराबर है. तो अलॉटमेंट किसने नहीं भरा है? सिर्फ राम ने. क्या राम और श्याम दोनों ने? अलॉटमेंट किसने नहीं भरा है? सिर्फ राम ने नहीं भरा है, बराबर है. तो अभी अमाउंट बताओ मुझे खुशी. हाउ विल यू राइट द अमाउंट? अलॉटमेंट में कितना लिखना है पहले? 1,50,000. परफेक्ट, 1,50,000. बैंक में, अच्छा, कॉल इन अरियर में कितना आएगा? कॉल इन अरियर में 500 into 5. 500 into 5 rupees. परफेक्ट, 2500. एंड बैंक में कितना आएगा? 1,47,500. 1,47,500. This is allotment received and CIA adjusted. Allotment received and CIA adjusted. Is this clear? Got it? Next one is क्या दिया हुआ है? पढ़ो. Fifth one. Mitisha, please tell me what will be the next entry? Equity share first and final call to equity share capital. Perfect. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. How much you will write over here? 1,20,000. Absolutely right. क्योंकि 30,000 shares पे 4 रुपया मांगा है तुमने. 1,20,000 you are expecting, right? So 1,20,000 rupees. This is first call due, first and final call due.
What should be my next entry? Ria Khandor. Ria can be my next entry. Bank account, call in arrears account to equity share first and final call. Perfect. Bank account debit, call in arrear debit to equity share first and final call account. Can you tell me, Ria, how much you'll write in final call? Final call will be 1,20,000. Absolutely right. अभी call in arrear एकदम ध्यान से जरा देख के बताओ मुझे. Sorry. 1,000 shares. Mhm. So it will be 1,000 into 4,000. 1,000. Is it 1,000? Only 1,000? या 1,500? 1,500. हाँ, 1,500. राम और श्याम दोनों मिल जाएंगे ना डिफॉल्ट में. हाँ, 1,500. राम का 500 और श्याम का 1,000 दोनों ने डिफॉल्ट किया तो 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 4. 4, that will be 6,000. And what will go in the bank? 1,14,000. 1,14,000. This is first and final call received and CIA adjusted. All the others are getting this. Any doubt, anyone till this point? Tell me. किसी को कुछ नहीं समझा? हिया दोषी को समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? एकदम पक्का? चलो बढ़िया. चलो हिया दोषी बताओ अभी मुझे कंपनी क्या स्टेप ले रही है इसके बाद. थिंक एंड टेल मी. Yes, sir. कॉल वॉल तो सब मांग लिया. अभी क्या कर रही है? Shyam also failed to pay the पे द money. फाइनल कॉल वो तो हो गया. हाँ. Forfeiture. तो व्हाट इज द जर्नल फॉर forfeiture? Equity share capital. Premium. Very good. To calls in arrear. Very good. And to share forfeiture. Very good. Awesome. Equity share, capital account debit, premium account debit. ये क्लिक होना जरूरी है. जिस सम में प्रीमियम है उधर forfeiture में पहले डेबिट ही कर दो. प्रीमियम कर ही डालो. मैं तो बोलता हूं कर ही डालो. उसके बाद चेक करो सम में. Once received should not be debited, not received should be debited. फिर नील होता है तो नील लिख दो अमाउंट. क्या फर्क पड़ता है? नुकसान तो नहीं है कुछ. तो forfeiture में प्रीमियम लिख ही दो पहले. तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर टू शेयर forfeiture अकाउंट. समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताओ हिया जोशी, व्हाट अमाउंट, हाउ मेनी शेयर्स आर यू कैंसलिंग? वो बताओ पहले. टोटल कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं? 1,500. हाँ, 1,500. राम श्याम दोनों का मिला के. तो हाउ मच विल राइट इन कैपिटल? कैपिटल विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1,500 into 1,500 into 3. अरे बाप रे. अरे नहीं सॉरी. कॉल्ड अप पूरा कॉल्ड अप कैपिटल. कितना कॉल्ड अप है अभी तक? कितना मांग लिया है कैपिटल की तरफ? 10. 10 मांग लिया है तो 10 से कैंसिल करो. 5 मांगा है तो 15,000. 5 से 15,000. 10 मांगा है ना, 10 से कैंसिल करो. प्रीमियम का क्या रूल है बंधुओं? बताओ मुझे. व्हाट इज द रूल फॉर प्रीमियम? वंस रिसीव्ड should not be debited. Whereas not received should be debited. बराबर है? तो चेक करो. ऑल ऑफ यू चेक. राम और श्याम दोनों में से अलॉटमेंट किसने भरा है? पढ़ो. श्याम ने भरा है. श्याम ने अलॉटमेंट भरा है तो श्याम ने प्रीमियम भी भरा है. तो शुड आई डेबिट इज प्रीमियम? नो. पैसा आ चुका है प्रीमियम क्रेडिट में. नो टेंशन. जेन्युइन क्रेडिट इन प्रीमियम. डोंट टच दैट. डिड राम पे द अलॉटमेंट? नो. तो डिड ही पे द प्रीमियम? नो. प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. तो डेबिट करूंगा मैं. तो प्रीमियम में कितने शेयर्स का डेबिट करूंगा? 500 की 1000? 500.
500 into what? 2 rupees. That makes it 1000. To call in arrear यहाँ से मिल जाएगा, ऐड कर लो 6000 plus 2500, टोटल 8500 है. एंड 4 फीचर बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा सीधा 16 minus 8, 7500. Is this clear? 4 feature is balancing figure 7500. अभी इसका ऑपरेशन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है. ये 7500 क्या है? शेयर 4 फीचर है, हड़पा हुआ पैसा है. इसमें किसका हड़पा हुआ पैसा है? राम श्याम दोनों का पैसा है हड़पा हुआ. दिमाग लगाओ, राम ने क्या भरा था? हितविशा, व्हाट डिड राम पे? Ram paid the allotment money. हैं? He didn't pay the allotment money. He paid only the application. Paid only the application, right? तो उसके 500 शेयर्स पे कितना लोगे? 500 into what? 7. He paid only application. You only told me just now. Yeah, so rest he didn't pay na. So we paid only 3 rupees का application. हाँ, तो we are checking only what he has paid. वही हड़पा है ना शेयर 4. 7 rupees he didn't pay and 3 rupees he paid. हाँ, तो 500 into 3 basically. Got it? Yes. 500 into 3 is 1500. That is what he paid towards capital. And 7 नहीं भरा ऐसा नहीं है. He did not pay 9 rupees because he did not pay premium also. So उसने 12 रुपए में से 3 रुपया भरा है towards capital और 9 रुपया नहीं भरा है. 7 towards capital and 2 towards premium वो नहीं भरा है. बराबर है? Now, what did श्याम पे? हेत शाह, श्याम ने क्या भरा है? Application or allotment. So how many shares of Sham? 1000 shares. So should I do 1000 into 3 plus 5, 8? No, Why? because उसमें premium भी है. So how much should I take? 1000 into what? 6. 6 rupees. That comes to how much? 6000. अभी अभी मैंने गला फाड़ के चिल्लाया था लास्ट सम में. शेयर 4 फीचर में कौन सा अमाउंट लेना है? बोलो. towards capital. हाँ, टुवर्ड्स कैपिटल. प्रीमियम मत ले लेना उसमें, तो टैली नहीं होगा कभी आंसर. इधर टैली हो रहा है ना, ऊपर 7500 का ब्रेकअप मिला ना अपने को, मस्त में मिल गया. ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाओ. कॉल इन अरियर का भी ब्रेकअप ढूंढो. चलो, यूज योर ब्रेन. सीआईए टोटल है 8500. इसमें दोनों का सीआईए पड़ा हुआ है. राम श्याम दोनों का सीआईए पड़ा हुआ है. बताओ मुझे, राम ने क्या नहीं भरा है? Allotment and call. Allotment first call, second call. Allotment and first and final call. अभी कॉल इन अरियर में कोई भेदभाव है कि कैपिटल का नहीं भरा, प्रीमियम का नहीं भरा? नो, ऑल भेलपुरी, ऑल टुगेदर. तो कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ? आप लोग बोलो. 9 रुपीज. परफेक्ट. 4500. श्याम का 1000 शेयर्स कितने से मल्टीप्लाई करूं? 4 रुपीज. 4000 रुपए. टैली हो रहा है क्या आंसर? यस, आप लोग करेक्ट हो. Congratulate yourself. Is this clear? Is this clear? यहां तक समझ में आया? हमने कितना शेयर्स कैंसिल किया है? 1500 शेयर्स कैंसिल किया है. देखो ऊपर वाली एंट्री तो 2 सेकंड में आ जाएगी आपको. सीआईए छापना है, शेयर 4 फीचर बैलेंसिंग है, बट अंदर का मसाला, ब्रेकअप, मीनिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं. नेक्स्ट वन, What happened after that? चेक करो. You reissued the shares. लेकिन गम्मत है अभी. यशवी का भावना पहुंच गया उधर. यशवी ने जो पूछा था वही दे दिया है अभी सामने. देखो क्या दिया है. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. ये इसमें कुछ शेयर 4 फीचर नहीं होगा ना सर, क्योंकि वो लोग ने 10 पे ही इश्यू किया ना. नहीं बेटा, पढ़ो वहां पे क्या दिया है. Of the shares forfeited 1250 shares, including whole of Ram shares, were subsequently reissued to Jaddu as fully paid up at a discount of 2 per share. 8 पे किया इश्यू. फुल्ली पेड अप मतलब क्या? शेयर होल्डर को बोल रहे हैं आपका शेयर फुल्ली पेड अप है 10 रुपया, बट अभी पैसा कितना देना है आपको? 8 रुपया, डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज. So you have reissued the shares at 8 rupees.
अच्छा मुझे बताओ री इश्यू कितने शेयर्स का हुआ है? 1500 1250 का ही हुआ है, तो मुझे बताओ री इश्यू एंट्री कितने का करूं? 1250 की 1500? 1250 का ही करोगे ना यार, 1500 का थोड़ी करोगे, 1250 का ही करोगे। बात समझ में आ रही है? तत्वेश दोषी, कैन यू टेल मी द री इश्यू एंट्री ऑफ दीज 1250 shares? Bank share forfeiture to equity share capital. Absolutely right. Why will you debit share forfeiture? Because Loss में issue कर रहे हैं ना. लॉस में इश्यू किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हाउ मच यू विल राइट इन बैंक? 10,000 2500 12,500. हाँ, that will be 1250 into 8. That makes it 10,000. लॉस हो गया 1250 into 2. That will be 2500. And capital में आएगा 1250 into 10. That will be 12,500. Got it, all of you? 1250. ऐसा कैसा हो गया? ये तो झोल हो गया. 1500 शेयर हमने कैंसिल किया था और रीइश्यू कैसा 1250 किया. बाकी 250 का क्या? कंपनी ने रखा होगा. कंपनी ने अभी रखा है, वो बाद में रीइश्यू करेगा. अच्छा, ये 1250 में किसका कितना शेयर है ये मालूम है आपको? राम का 500, श्याम का 750. ऐसा मालूम पड़ा? उधर हिंट में दिया हुआ है कि होल ऑफ राम शेयर. इसमें राम का 500 है और श्याम का 750 शेयर है. फर्क पड़ता है क्या उससे? सॉरी, फर्क पड़ता है क्या उससे? हाँ भैया, बहुत फर्क पड़ेगा, आगे पता चलेगा आपको. ये टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मुफ्त वाला एंट्री है, नेक्स्ट वाले में फर्क पड़ेगा. व्हाट इज दैट एंट्री, बताओ मुझे. forfeiture to capital reserve. Forfeiture to capital reserve. कितना ट्रांसफर करो? 3,500. 3,500. कैसा मिला आपको 3,500? कैन यू इलैबोरेट यशवी? 6,000 minus 2,500. 6,000 क्या था? 6,000 4,500 plus 1,500. कैसा मिला 4,500 वो प्लस 1,000? 750 शेयर्स का है. हाँ, तो प्रॉफिट भी कितना शेयर्स का लेना है? 750 और 500 शेयर्स का. 500 शेयर्स का बराबर है. तो 1,500 रुपया और 4,500 होता है 6,000. 6,000 में से 2,500 गया तो 3,500. एब्सोल्युटली राइट. सबको मिला 3,500. ऊपर से गया ईशान शर्मा वाला बाउंसर. हाँ देखो, यहाँ पर आपने रीइश्यू किया है खाली 1250 शेयर. ठीक है, तो ट्रांसफर भी कितने शेयर्स का प्रॉफिट करना है आपको? 3250 का. सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 1250 का. आपने रीइश्यू किया है खाली 1250 शेयर्स, 1250. तो आपको प्रॉफिट भी जो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व है, ये भी खाली 1250 शेयर्स का ही ट्रांसफर करना है. ठीक है, अब ध्यान से मुझे बोलो, इस 1250 में राम का कितना था, श्याम का कितना था? राम का 500 शेयर्स था ना, और श्याम का कितना रीइश्यू किया है? 750 शेयर्स. मतलब श्याम का अभी भी 250 शेयर्स रीइश्यू करना बाकी है. समझ में आया? अभी पहले तो कैसे ढूंढते हो कितना ट्रांसफर करना है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व? प्रॉफिट माइनस लॉस. प्रॉफिट माइनस लॉस. तो प्रॉफिट देखो, राम का प्रॉफिट देखो, राम का सब रीइश्यू किया है, तो राम का पूरा प्रॉफिट ले लो. राम का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, 1500, 500 शेयर्स का मिला. तो राम का 1500 शेयर्स का प्रॉफिट. ओके, और श्याम का कितना प्रॉफिट लेना है? विल यू टेक 6,000? नो, व्हाई नॉट 6? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढना पड़ेगा. ये शेयर्स है और ये शेयर फॉरफीचर है. 1000 शेयर्स पे उसका 6,000 का प्रॉफिट था, तो 750 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 4,500. प्रोपोर्शनेट. क्यों मैंने ऐसा किया, समझ में आया? क्योंकि अभी भी 250 शेयर्स बाकी है उसका रीइश्यू करना. तो आई कैन नॉट टेक 6,000 इन केस ऑफ श्याम. श्याम का पूरा रीइश्यू किया ही नहीं है. श्याम का समझो आधा रीइश्यू किया होता, आई वुड हैव टेकन 3,000, हाफ ऑफ 6,000. गॉट इट? सर आप श्याम
कर सकते हो ना 750 into 6. हाँ 750 into 6 भी करो तो भी चलेगा, 750 into 6 करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वही चीज है। तो बेसिकली श्याम का आई वोंट टेक 6000, आई टेक ओनली 4500, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है 6000। राम और श्याम का टोटल प्रॉफिट है 6000 माइनस लॉस कितना हुआ रीइश्यू पे 1500, तो हाउ मच विल यू ट्रांसफर 3000। समझा? अभी सबका सब रीइश्यू कर देते तो 1500 का 1500 रीइश्यू कर देते तो 5000 कैसा, ये 6 + 1500 7500 माइनस 2500, सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। गॉट इट? इधर खाली 1250 रीइश्यू किया है ना, तो 1250 का ही प्रॉफिट लो माइनस 1250 का लॉस लो, प्रोपोर्शनेट। अभी लास्ट सम में हमने खाली पी का रीइश्यू किया था, तो पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस किया था। क्यू का रीइश्यू कर रहे हो तो क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस करो। इधर क्या किया है, पी का पूरा क्यू का आधा, तो पी का पूरा प्रॉफिट लो क्यू का आधा प्रॉफिट लो, माइनस लॉस कर दो। तो यहां पर यू विल ट्रांसफर 6000 माइनस 2500, दैट विल बी 3500। ये आया क्या खुद से? तो आप सीए फाउंडेशन के लायक हो अच्छे तरीके से। नहीं आया तो भी टेंशन मत लो, आगे करना ही है अपने। दिस इज शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया कि नहीं? टेल मी। बताओ, एनी डाउट्स? सर ये लास्ट वाला एक बार समझाओ ना आप। हाँ, मुझे बोलो कितना शेयर हमने रीइश्यू किया है? 1 2। मुझे बोल, अगर तूने खाली राम का शेयर रीइश्यू किया होता, राम का, तो कितना शेयर होता राम का? 500। हाँ। तो और फिर कैसा ट्रांसफर करता तू शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व? अमाउंट कैसे ढूंढता? तो 1500 का इस जगह पे सब 500 लेता। हाँ, रीइश्यू के जगह पे 500 शेयर्स रहता, बराबर है। अभी ट्रांसफर एंट्री कैसे करता? ये लास्ट वाला शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें कितना शेयर कैसा ढूंढता? क्रेडिट माइनस कितना प्रॉफिट माइनस कितना लॉस। अगर 500 ही तूने रीइश्यू किया है तो हाउ मच यू वुड हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व? खाली राम का शेयर अगर तूने रीइश्यू किया है तो खाली राम का प्रॉफिट लेता ना। राम का प्रॉफिट कितना था? हड़पा हुआ पैसा 1500 माइनस राम का लॉस लेता यहाँ का, प्रॉफिट माइनस लॉस करके आंसर आता ना तेरे को ट्रांसफर का। हेलो? हाँ सर समझा। हाँ, वैसे खाली शाम का रीइश्यू करता तो क्या करता? शाम का प्रॉफिट माइनस शाम का लॉस होता है यहाँ पे। अभी राम और श्याम दोनों का मिला के रीइश्यू किया है, तो राम का 500 शेयर्स है मतलब पूरा, तो राम का तो पूरा प्रॉफिट ले ले 1500 रुपया, और शाम का पूरा प्रॉफिट नहीं लेना है क्योंकि उसका 750 रीइश्यू किया है, तो उसका 750 शेयर का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले 4500। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 6000। ये प्रॉफिट है माइनस ये लॉस भी हुआ है यहाँ पे 2500। 6000 माइनस 2500 गिव यू 3500। समझा कि नहीं? चलो गाइस, टेल मी, यही सिचुएशन में 1250 शेयर अगर होते और उसमें श्याम के पूरे होते 1000 और राम के 250 होते, अब क्या करते आप लोग? अब कितना ट्रांसफर? 250 into 3 करते हैं। हाँ, तो मतलब राम का कितना प्रॉफिट होता है? 750 और शाम का कितना होता है प्रॉफिट? 6000। तो 6000 प्लस 750 6750 6750 minus 2500, that much you would have transferred from share forfeiture to capital. Did you get it? अगर 1250 में श्याम का पूरा 1000 होता तो पूरा प्रॉफिट ले लो, राम का 250 रीइश्यू है तो 750 प्रॉफिट ले लो, प्रोपोर्शनेट। टोटल प्रॉफिट 6750 माइनस द लॉस, गेट द आंसर। अगर ऐसा हुआ होता तो किसका कितना रीइश्यू किया उतना ही प्रॉफिट लेके लॉस तो है ही, रीइश्यू एंट्री में लॉस पड़ा हुआ है, सीधा माइनस करना है आपको, गेट द आंसर।
लास्ट सम फॉर द डे, दैट इज सम नंबर, ये आपको खुद से करना है पूरा का पूरा प्रॉब्लम, दैट इज क्या, हाँ दिस वन, सम नंबर या some number sum number 2, solve sum number 2, सम नंबर 2 में है ना, सम नंबर 2 में खाली डू वन करेक्शन, सम नंबर 2 में नहीं नो करेक्शन करो, चलो क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करो, क्वेश्चन 2 सॉल्व क्वेश्चन 2 एज इट इज, क्वेश्चन 2 इज ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉल्व इट, सर फॉरफीचर नहीं करना है उसमें ना? नहीं क्वेश्चन 2, सर इसमें जो 45,000 शेयर्स है वो 5,000 शेयर्स फॉरफिट किए गए। फॉरफिट नहीं है, वो कॉल इन एरियर है, पढ़ो ध्यान से क्या दिया, 5,000 कॉलिंग दे रहे हैं। 5,000 शेयर्स पे कॉल इन एरियर, 45 पे ही भरा है वो लोग अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट पर, on 5,000 shares you have call in area.
19th sum is for homework. Assignment sheet 19th sum. Yes. सर वो 5000 का जो कॉल इन बोलो। अरियर है वो जब फाइनल कॉल में जाएगा तो उसका 10,000 हो जाएगा ना? नहीं भाई, जो 5000 ने अलॉटमेंट में नहीं भरा है वही 5000 ने फाइनल कॉल नहीं भरा है। उधर क्या दिया है? कॉल इन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 45,000 शेयर्स। इसमें कैसा पता चलेगा कि खाली अलॉटमेंट के लिए दिया है? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए उसको दोनों के लिए 45 ही है, पढ़ना स्टेटमेंट। Allotment and first call money was received for 45,000 shares. जब allotment भी 45,000 shares पे मिला और first call भी 45,000 shares पे मिला, दोनों पे 5,000 ही हुआ ना कॉल इन एरियर, सेम डिफॉल्ट। सर इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड तक ही आएगा ना, बाद में उसके आगे नहीं आएगा ना कुछ? और कुछ है क्या सेकंड कॉल? नहीं ही मतलब तो है। फीचर का नहीं आएगा ना कुछ अभी इसमें? नहीं, वो फीचर रीइश्यू कुछ नहीं। 6 एंट्री सम इट इज, 6 एंट्री। सर वो जो होमवर्क सम है ना उसमें डेट्स दिया है तो फिर अभी डेट लिखने का ना वो साइड के कॉलम में। हाँ, डेट्स दिया है तो फिर डेट लिखने का, सीरियल नंबर की जगह डेट हो जाएगा। एक्चुअली तुमको डेट्स है नहीं, सीरियल नंबर भी लिख दोगे तो नो प्रॉब्लम होगा। शेयर्स में वेट लेट मी डिस्कस 2 मिनट। सर उसमें बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स है वो इसके लिए कौन सा बैलेंस? 19th में बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस अमाउंट मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तुमको ढूंढने का हो और एंट्री करना है। सर 25% प्रीमियम है तो 1 मतलब प्लस 25 125 रुपए इश्यू प्राइस। वो होमवर्क है, पहला ये चेक कर लो, सेकंड सम का एंट्री चेक कर लो। तुम्हारा एंट्री होना चाहिए बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 into 20, 12 lakhs मिला। बैंक टू एप्लीकेशन 12 lakhs, then application account debit 12 lakh to capital 10 lakh to bank 2 lakhs, reject and refund किया है आपने। Second entry will be equity share application 12 lakh to capital 10 lakh to bank 2 lakh मिला। Then equity share allotment to equity share capital will be 5 lakhs. Bank to equity share allotment will be 4 lakh 50,000 and 5 lakh. बराबर। Then equity share first and final call to equity share capital will be 10 lakh. Then bank call in arrear to equity share first and final call will be 9 lakh, 1 lakh and 10 lakh. बराबर है? 4 feature reissue नहीं है, over subscription, that's it. Question number 19 is for homework. Date नहीं लिखा तो चलेगा, you can write serial number. Okay, shares में you don't have dates as it is. खाली serial number mention करोगे तो भी चलेगा, no problem. 19 sum, one sum for homework submitted by tomorrow evening. अच्छा, और एक announcement है for CA Foundation students. Those who are doing CA Foundation, okay. See, last meeting में क्या हुआ था कि we told that May attempt हो या November attempt हो, आप जो देना है दे सकते हो, ठीक है, बट आपको ये 2 महीना अटेंड करना पड़ेगा, that is November and December. So now we have given a thought on it और हमने डिस्कस करके डिसाइड किया है कि अगर आप May attempt दे रहे हो, if you are giving May attempt, only then you will have to start attending from November. November से आपका November, December, Jan में आपका lectures होगा 6 hours जो हमने डिसाइड किया। Only if you are giving May attempt, ठीक है। अगर आप November attempt दे रहे हो तो आपको अभी November, December, Jan में lectures attend करने का जरूरत नहीं है। You can just
do 12th standard, whatever you want. After your boards, wherever the boards are, whether April or May भी एग्जाम खत्म हो जाएगा. उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3-4 महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा. But that time you can come because you have free time. You have nothing to do after 12th standard. So that time you can do your November का foundation stuff. Got it? अगर आप नवंबर देना चाहते हो तो अभी आपको लेक्चर्स में नवंबर, दिसंबर, जैन में अटेंड करने का जरूरत नहीं है. सुना? अगर मई अटेम्प्ट दे रहे हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बैठ जाना. दोनों चॉइसेस है, योर विश. मई करना है तो मई, नवंबर करना है तो नवंबर. पर सम स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड. हम लोग को फोन भी आया कि एक्चुअली ऑनलाइन है तो, एंड बात भी बराबर है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए हो 6-8 महीने से ऑनलाइन बैठ के. तो अगर कैपेसिटी है, यू कैन give it a shot, give it in May, no problem at all. Okay, we'll be doing both the things the way it is perfectly from start to end. Basically May का नवंबर, दिसंबर, जैन अभी बैठ के अटेंड करके हो जाएगा आपका. और नवंबर देना है तो अभी अटेंड करने की जरूरत नहीं है. You can start attending after your boards, after your board exams from April end or May end or whenever the boards are. Okay, उसके बाद आपका फुल पोर्शन तभी 2-3 मंथ्स में हो जाएगा. थोड़ा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा ऑब्वियसली वहां पे, बट दैट टाइम देयर शुडंट बी एन इश्यू बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी अदर थिंग टू थिंक ऑफ. लेकिन सर तभी सब कॉलेज का प्रोसेस भी चालू होगा ना एडमिशन का, तो बाद में. बट दैट विल टेक 2 months. इफ योर बोर्ड एग्जाम्स आर इन मे, योर रिजल्ट्स विल कम बाय जुलाई. योर कॉलेज प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय अगस्त or September. So everything will get delayed. And the attempt may also get delayed from November to December. So जो 3 महीना अपने को यहाँ पे चाहिए ना, November, December, Jan का, the same 3 months we have over there. November, at least 3 months will take out. तो फिर आगे अगर फाउंडेशन अगर नवंबर से डिले हुआ तो आगे का फिर डिले होगा कि वो पूरा सेम रहेगा? See, you never know actually about any delays. Any delays you can't predict because ICAI का मैंने तुमको बोला अभी लास्ट 1 महीने में 3 डेट्स चेंज हुआ है सीए फाउंडेशन. हाँ सर, अभी 1 दिसंबर, एक बार ये दिसंबर का एग्जाम हो जाए, ये अटेम्प्ट इंटर फाइनल सीए फाउंडेशन बराबर से हो जाए, अगर ये अटेम्प्ट हो गया ना तो फिर पकड़ लो कि सब कुछ मई का मई में या जो नवंबर का नवंबर में ऐसा हो. फिर खाली बोर्ड्स का आपको लेना देना है, बोर्ड्स का देखना पड़ेगा. लेकिन बोर्ड्स का उसके बाद भी यू विल गेट 2 months, 2 full months you will get, because बोर्ड का रिजल्ट ही अगर एग्जाम मई में हो रहा है, your result will be extended till जून जुलाई, और उसके बाद 1 महीना फॉर एडमिशन प्रोसेस. और एक बार एडमिशन प्रोसेस इज नॉट अ बिग डील, वो तो ऑनलाइन ही है पूरा FY BCom का, तो वो तो कहीं जाना नहीं है आपको. और कॉलेज भी चालू हो गया तो FY BCom में अटेंडेंस इज नॉट दैट बिग डील. उससे पहले ही एक्चुअली आपका पोर्शन हो जाएगा. 2.5-3 months तक विल ट्राई टू कवर द मैक्स. उसके बाद 1-8 महीना कुछ लगेगा एक्स्ट्रा, तो विल टेक दैट. हो जाएगा, उसका टेंशन आप लोग मत लो. ठीक है सर, तो फिर हमारा क्लास का यही टाइमिंग रहेगा ना, जो सीए फाउंडेशन नहीं करते. सीए फाउंडेशन नहीं कर रहा उसको तो कुछ है ही नहीं लेना देना. उसका तो सेम चालू है मॉर्निंग में 12th स्टैंडर्ड. तुम काय को टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं उसमें. तो सीए फाउंडेशन कर रहा है उसको अभी 1 o'clock to 6 o'clock 7 o'clock अभी बैठने का है मे अटेम्प्ट का. जो नहीं कर रहा है वो सीधा नवंबर. और वो कब से चालू हो रहा है मे अटेम्प्ट के लिए? मे अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. सर आपके हिसाब से आइडियली कौन सा अच्छा है? It depends on your capacity. Depends on your capacity. You're able to take both, give in May. If you feel it's difficult, it's lengthy, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इश्यू हो रहा है, you can go for November. ऑप्शंस दोनों है. 6 महीना का वो दिमाग में नोशन मत रखो. 6 महीने का नोशन इज जस्ट ICAI का गिमिक, जस्ट टू रेज फंड्स. 18-20 करोड़ रुपया वो लोग को रजिस्ट्रेशन का कमाने का है. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे हैव डन दिस. और कोई रीजन नहीं है ICAI का. ओके, 9,000 रुपया तुम लोग रजिस्ट्रेशन पे पे करता है. अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स विल रजिस्टर. 18-19-20 करोड़ उनका कलेक्शन हो जाए. वो रीजन है. 6 महीने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे हो अटेम्प्ट में. सीए में तो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू वांट टू डू कॉम्पिटिटिव करके अभी मई में करने का है, दोनों करके गिव इट इन में, नो इश्यू एट ऑल.
अगर नहीं हो रहा है तो पीछे बोर्ड के बाद भी कर सकते हो, नवंबर भी है, इधर पूरा स्टार्ट टू एंड विल बी टेकन बोथ, तुमको किधर कुछ टेंशन का प्रॉब्लम किधर भी नहीं आएगा, वेदर यू गिव मे वेदर यू गिव नवंबर, इट्स होल एंड सोल योर चॉइस, कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लो। ओके, दोनों आइटम परफेक्टली हो जाए, डोंट वरी, मे भी हो जाएगा में जो टाइम एलोकेट कर रहे हैं हम लोग